today's lecture we have deal with some numericals regarding our current lecture series. Okay, effect of electric current. Now here, first of all, try to understand the problem and the values we are having here. Means they are already given to us. A 6 meter long wire made from an alloy. Alloy means what? Two different type of elements come together and they make it alloy. Okay, a nichrome is shaped into a coil and given for producing heat. It has a resistance 22 ohms. Ohms is the unit of resistance and we are indicating resistance by using capital R. Can we get more heat if the wire is cut into half of it? Simply not. It's not possible. If we are cutting the cut wire half side, then we are not get the more heat. Okay, so simply before calculating the answer, we must know or we are able to say it's not possible. Okay, cut into half of its original length and shape into a coil. Then now this is a question. Then for what we want to do here, that is what, for getting energy, the two ends of the wire are connected with a potential difference, that is what, 220 volt. That is 220 volt. Now here, for calculating the power, electric power, that is what, electric power. So we are having a formula, that is what, P is equals to what, V square upon R. V square upon R. And here in our problem, we are already having, means they are already given us a value of V and R respectively. Okay, so it means what, just put this value in our equation. So V is equals to what, 220. So V square, the value is also square. Okay, now this is what, R. R is what, we are having already, that is 22. Okay, the value of R is what, 22. Okay, just do the square. Do the square. So here it's very easy. If you know the square between 1 to 30 number, then you can easily calculate it. Okay, there is no problem. Forget about this 0. Just do the square of 22. That is what, 484, isn't it? 484. So this is what, 484 is the square of what, 22. Just multiply this 2 with this 0, then we will get 2 times 0. Are you getting me? Yes. Okay, then divide this number by using 2. Then what we get? 22 2s are 44. 48 minus 44. जर तुम्हाला असं म्हणायचं आहे हे 24 आहे तर काय चेंजेस होतील, गिवन व्हॅल्यू बदलतील. चला असू द्या ना, काही फरक पडत नाही. 24च आहे का पण ते 2 22 2 44. 48 minus 44, remainder is what, 4. Here already 4 and due to this 4 it becomes again 24. Okay, 22 2 24. Sorry, 22 44. Okay, so here we directly write this reminder is what, 20. So directly write this 20. कळतंय? इथं मी काय केलंय, मराठी समजतं ना. ओके, ह्या 22नी ह्याला डिवाइड केलं, बरोबर. पहिल्यांदा काय केलं, 22 दुनी 44, 4 उरले, 4 आणि 4 झाले, परत 44, परत 22 दुनी 44, मग राहिलं काय शिल्लक खाली 2, तो 2 0, ते 2 0 ॲज इट इज आपण इथं लिहून काढले. मग मला जी मिळाली व्हॅल्यू इलेक्ट्रिक पॉवर इज व्हॉट, 2200. आणि ह्याचं युनिट काय आपण कालच पाहिलं, वॅट आहे ना. येस और नो? मी म्हणतोय म्हणून आहे ना. ओके, okay, so before starting the calculation, try to understand the problem. That is what, here a cell is connected to 9 ohm, okay, resistance, because of which heat of 400 joule is produced per second. That's why we're dividing by using 1 second. Okay,
due to current flowing through it obtain the potential difference applied across the resistance. Here we are having the value that is what, 4 joule. They are already given to us. Okay, so find out first of all value of P, that is what, 400 joule upon watt per second. So the last element of time, that is what, second. After that second we cannot able to bifurcate the time. It may be possible to bifurcate it, but practically we are not use that particular point. Means fraction of second, that is the 10th part of second. Fraction of second means 10th part of second, but practically we are unable to use it. Okay, so directly here 400 divided by 1, it becomes to what, 400. Now continue this value, 400 is equals to what, V square upon R. V square upon R. Then yes, what will be the value of V square upon R? That is what, yes, we may calculate. Where is the 9? They are already given us. Yes, 9 ohm. That is what, here 400 is equals to V square upon what? The value of R is what? 9. Now calculate for V. V is equals to what? 400 into 9. Why? Because of, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि ये 4 है, ये 12 और ये 3, बराबर वैसे होता है ना. अब मुझे ये 12 के लिए क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा. वही यहाँ पर किया है हम लोगों ने. V square is equals to what? 400 into 9. It means what? 3600. Yes? 3600. 3600. Okay. Yes. 9 4s are 36, 20 as it is. Okay. V square is equals to what? ओके अब इस वैल्यू को हम अगर हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, दैट इज व्हाट, यस, ये इसको ऐसे ना कैलकुलेट करते हुए अगर मैं ऐसा लिखूं, ओके, इसका स्क्वायर जो है, ये जो वैल्यू है 400 इंटू वॉट 9 अंडर रूट, उन्होंने जैसा किया है. अगर आप इसका स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो इसका क्या कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और आने वाला वैल्यू क्या आएगा, ये किसका स्क्वायर है 420 का, और 9 किसका स्क्वायर है, यस 3 का. ओके, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल किया मीन्स 400 का हो गया 20 और ये 9 का हो गया 3. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 23 सा 60 और ये हमारा वैसे यूनिट जैसा है वैसा. किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये v स्क्वायर की. आया समझ में? क्या है फिर उसका यूनिट, देखो वैट है या वोल्ट है, देखो अच्छे से क्या है. अरे इस प्रॉब्लम में देखो ना 220 कहाँ पे, ये 220 का की वैल्यू रखी थी v स्क्वायर की. अब यहाँ पे v स्क्वायर निकाला है तो उसका यूनिट क्या रहेगा, वैट है वोल्ट. समझ में आ गया, कुछ दिक्कत नहीं ना. जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आप होमवर्क के लिए ले लो. ओके, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अब इसके बाद वो आप लोग होमवर्क के लिए ले लो. कुछ भी दिक्कत आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ लो. बोला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. ओके ओके, सो हियर वेरी सिंपल प्रैक्टिकल. सपोज आई एम हैविंग आयरन रॉड, okay, iron rod, and I am having a copper wire, naked copper wire. Just wind that copper wire to that rod and plug these two ends of that cable to the cell of 1.5 volt only, which is not harm to you if you directly touch them. Okay, for your safety use 1.5 volt only. Okay, if you arrange such a structure, then after that connecting these two end of cable to that cell, this structure behaving like a magnet, but this magnet is due to electricity, so that's why we called it electromagnet. Okay, and we know very well, whenever the magnet will come, it means what, here the polar property always present there. The polar property is always present there. It means what, suppose north pole and south pole of magnet, I am having 2 bar magnet.
one and the second bar magnet, that is this is one also north and this is also south. Okay, if I'm trying to move together this north towards the north, then what happen? They attract each other. Suppose I'm having these two bar magnet, okay, let's assume the cap side of this pen, this and this, denoting north pole, and the back side of both pen denoting south side. Okay, now I am trying to move towards each other, these north pole trying to come together, then they are attract each other, isn't it? Yes or no? नो. आप लोगों का अटेंशन पाने के लिए तो मैं गलत बोला ना आपको, तो कुछ हाँ सर ऐसा ही है. मेरे बोलने से क्या होता है? ये सिमिलर पोल है, इनमें रिपल्शन होगा. क्या होगा? रिपल्शन. ये एक दूसरे से अलग करेंगे. अगर इस मैकेनिज्म में मैं इन दोनों को साथ लाऊं तो अब दोस्ताना होगा. बराबर? समझ में आया? ऐसे करोगे तो दुश्मनी, ऐसा करोगे तो दोस्ताना. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपल्ट ईच अदर. क्लियर? आपने देखा होगा ना, दो मैग्नेट खेलते हुए भी बचपन में देखा होगा. दो अगर मैग्नेट के पीस आपके हाथ में है तो कुछ स्पेसिफिक एंगल में एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक एंगल में नजदीक लेके जाओ, इधर 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 ऐसे करते ना, रिपल्ट होता है. वही सेम बिहेवियर मैग्नेट का जो पोलर प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी होता है. यहाँ पर भी अगर दो नॉर्थ पोल और दो साउथ पोल को एक साथ लाने की कोशिश करोगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ही मिलेगा. चलेगा? आप क्या कर लें, हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख ही लेते हैं. ओके, जैसे कि when two like poles of magnet comes together, then they are, yes, repelled each other. है या ना? दो लाइक का मतलब क्या है? सेम, एक जैसे. ये हो गया डेफिनेशन नंबर ए. नाउ बी कैसे बनेगा? when two unlike poles of magnet comes together, then they are, yes, attract each other. समझ में आ गया? अगर दो लाइक चार्जेस लाइक पोल्स है तो वो रिपल्ट करेंगे, अनलाइक पोल्स है तो अट्रैक्ट करेंगे. जैसे कि अगर आप देखो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में अगर शादी करनी होती है तो अपोजिट जेंडर की होती है. सिमिलर जेंडर की शादी देखे हो कभी? नहीं. आप बोलोगे सर रूल बदल रहे हैं. चलो कोई दिक्कत नहीं, पॉज करो. ओके, अब जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल में करंट फ्लो होते से ही इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर ये मैग्नेटिक कैसे होने लगता है. अब जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेट कॉपर वायर था, उसको किसी लोहे की कील से अगर आप वाइंड कर दो और उसमें से करंट फ्लो करो तो वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है. लेकिन क्यों और कैसे? सीधा अगर रहे और उसमें से करंट पास करो तो वो करेगा मैग्नेट जैसा बिहेव? करेगा? नहीं करेगा. तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? वाई? बिकॉज ऑफ, अगर आप देखोगे अच्छे से तो बार मैग्नेट में, किसमें? बार मैग्नेट में ऐसे लाइन ऑफ फोर्स एग्जर्ट होते हैं दोनों एंड से. क्या होते हैं? लाइन ऑफ फोर्स एग्जर्ट होते हैं और एक एंड से निकलकर वो दूसरे एंड तक ऐसे कनेक्टिंग होते हैं. इन्हें ही हम बोलते हैं, इन लाइन ऑफ फोर्स को, इस लाइन ऑफ फोर्स को कहा जाता है फ्लक्स. क्या कहा जाता है? फ्लक्स. रिमेंबर रखो, इसे याद रखो, बहुत अच्छी तरह से याद रखो. ये जो लाइन ऑफ फोर्स है उसे कहा जाता है
फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक अगर बार मैग्नेट है, सॉरी इलेक्ट्रिक अगर मैग्नेट है तो यहाँ पर भी वो बार मैग्नेट, सॉरी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है वो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो वहाँ पे जो लाइन ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रिसिटी के वो भी होते हैं फ्लक्स। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा है, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मान लो ये कॉइल बनने के लिए, एक राउंड मारने के लिए अगर मैं नीचे से ऊपर की ओर इसे लेके जा रहा हूं, तो इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे वाली, एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं इसको टर्न करके नीचे की ओर ला रहा हूं, अब कैसी बन रही है, क्लॉकवाइज। कैसे बन रही है, क्लॉकवाइज। अब और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये AC, ये CW, ओके, नीचे आते वक्त, ओके, यहां से अब ऊपर जा रही है फिर से एंटी क्लॉकवाइज, नीचे आ रहा है इट मीन्स व्हाट, और क्लॉकवाइज, ऊपर जाते वक्त एंटी क्लॉकवाइज, नीचे जाते वक्त क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने भी देखा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी अगर इंटेंसिटी को देखेंगे, मीन्स इस वायर की वजह से समझो, मान लो कि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो फिर ये जो वायर है इसकी वजह से यहाँ तक होगी ही ना। मीन्स जब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को टच करेंगी, क्या करेंगी, टच। अगर अब मान लो कि यहाँ पे हमने दोनों भी दिए हैं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, दोनों ही एंड देते हैं ना हम सेल के, दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस बार क्या होगा, ड्यू टू द अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इन दोनों में चार्ज का क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसका बिहेवियर ये मैग्नेट का जैसा रहेगा। मीन्स इसके कांटेक्ट में जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा, कैसा सब्सटेंस बोल रहा हूं मैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसके अंदर मैग्नेट को छूने की या मैग्नेट की तरफ जाने की एबिलिटी है, वो है आयन। हमारा बेसिक एग्जांपल क्या होता है, आयन। आयन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मैग्नेट के कांटेक्ट में आने से ही उधर खींचे जाता है, ओके। वो सारे सब्सटेंस जो मैग्नेट की ओर खींचे जाते हैं उन्हें कहा जाता है फेरोमैग्नेट। क्या कहा जाता है, फेरोमैग्नेट। उन्हें फेरोमैग्नेट ही क्यों कहा जाता है, फेरोमैग्नेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन सब्सटेंस को अगर आप कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मैग्नेट के साथ रखोगे, इनको मैग्नेट के साथ रखोगे, तो आफ्टर सम टाइम दैट फेरोमैग्नेट सब्सटेंस आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, दैट ferromagnet substance also behave like a magnet. It means what, in a Marathi there is a phrase that is what, ढवळ्या शेजारी पोळं बांधलं, वान नाही तर गुण लागलं. म्हणजे काय, ह्या फेरोमॅग्नेटिक सब्सटन्सला जर मॅग्नेटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवलं तर मॅग्नेटची काही प्रॉपर्टी ह्याच्यामध्ये ट्रान्सफर होऊन जाते आणि हा स्वतःही काही दिवसांनी मग मॅग्नेटसारखा वागायला लागतो. आपण बघतो ना स्क्रू ड्रायव्हर, छोटे छोटे स्क्रू पकडतो, तो मॅग्नेट असतं का त्यात, नाही, पण त्याला काही दिवसापर्यंत मॅग्नेटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवल्यामुळं ती प्रॉपर्टी त्याच्यात येऊन जाते. बरोबर, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी ही ट्रान्सफर होत असते, हे याच्यावरून क्लिअर होतं. एका सबस्टन्समधून दुसऱ्या सबस्टन्समध्ये मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी ट्रान्सफर होते. फॉर एक्झाम्पल जसे की बघा, हा एक बार मॅग्नेट आहे. काय आहे, बार मॅग्नेट. हा जो तुकडा आहे हा एक चुंबकाचा तुकडा आहे. ह्या चुंबकाच्या तुकड्याला मी एक खिळा लावला इथं. काय खिळा, खिळा. आणि या खिळ्याच्या ह्या टोकाला जर दुसरा खिळा लावला तर काय होतं, तो खिळा त्या खिळ्याला चिपकून घेतो. मग त्या तो हा लावलेला खिळा हा लोखंडाचा आहे का, सॉरी मॅग्नेटचा आहे का, नाही, तो तर लोखंडाचा आहे. बरोबर, पण हे फेरोमॅग्नेटिक नेचर असल्यामुळं काय होतं, तो मॅग्नेटकडून सगळी प्रॉपर्टी उसनी घेतो, स्वतः मॅग्नेटसारखा वागायला लागतो. चला आजा 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 आजा. बरोबर, मग ह्याच्यात तुम्ही म्हणणार सर आपण जर खिळा घेतला आणि खिळाचा दुसरे दोन टोक बदलून पाहिले, एकदा ह्याच्या तोंडाला बुड लावलं, तोंडाला तोंड लावलं, त्याच्यात फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन येईल का रिपल्शन येईल, काय येईल, दोन्ही वेळेला अट्रॅक्शनच मिळेल. कारण की दुसरा लावणारा जो खिळा आहे त्याचं जे इलेक्ट्रिकल चार्ज पाहिलं तर तो न्यूट्रल आहे, त्याच्यावर चार्जच नाही ना कोणता, तो कसा आहे, न्यूट्रल आहे. तो ह्याच्याकडे डायरेक्टली ओढल्या जाईल, त्याला चिपकलतो. कळालं इथपर्यंत, काही डाऊट नाही ना, असतील तर विचारा. ओके.